ঢাকার বুকে নতুন সড়ক। এটি বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট বা ফার্মগেট থেকে বিমানবন্দর। এই পথে চলতে এখন সময় লাগবে মাত্র 10 মিনিট। নিচের সড়কের তীব্র যানজট এড়িয়ে চলতে 3 सितंबर থেকে उठे पड़ुन এই সড়ক। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है और बांग्लादेश का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट और जिसकी ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है 3 सितंबर को। तो वो एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आप सुनकर भी खुश हो जाएंगे और बांग्लादेश की एक काया बदल के रख देगा। जी हाँ, आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि जी ड्रीम प्रोजेक्ट जो एक ख्वाब था वो हकीकत का रूप लेता जा रहा है। ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे साउथ एशिया का सबसे बड़ा ये एक्सप्रेस वे है जो बांग्लादेश अब बना रहा है। यानी ढाका के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये एक दूसरे को आपस में जोड़ेगा। तो ये तो बड़ा एजाज और बड़ा रिवार्ड बांग्लादेश के नाम और ढाका के नाम, ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे और 46 किलोमीटर। और इसके बारे में हम आपको ये भी बताएं कि ये 46 किलोमीटर जो है ना, ये आप सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स के अंदर तय कर सकेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे होगा इस पर जो स्पीड होगी व्हीकल्स की, गाड़ियों की, वो 130 140 फी घंटा की रफ्तार से वो चलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये 2 बिलियन US डॉलर की लागत से, कॉस्ट से बना है और इसके साथ साथ ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा मेगा और ड्रीम प्रोजेक्ट है ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। और इसका इफ्तिताह, इसकी इनॉग्रेशन 3 सितंबर को होगी। तो खैर, इसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ঢাকার বুকে নতুন সড়ক। এটি বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট বা ফার্মগেট থেকে বিমানবন্দর। এই পথে চলতে এখন সময় লাগবে মাত্র 10 মিনিট। নিচের সড়কের তীব্র যানজট এড়িয়ে চলতে 3 সেপ্টেম্বর থেকে উঠে পড়ুন এই সড়কে। এটি ফ্লাইওভারের মতো একটি লম্বা সড়ক পথ যা বিমানবন্দরের সামনে কাউলা থেকে শুরু হয়ে ফার্মগেট পৌঁছেছে। পথে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও নেমে যেতে পারবেন, আর এসব জায়গা থেকে উঠতেও পারবেন এই ফ্লাইওভার বা উড়াল পথে। সড়কটির বিমানবন্দর ফার্মগেট এই 11 কিলোমিটার উদ্বোধন হচ্ছে 2 সেপ্টেম্বর। এদিন প্রধানমন্ত্রী তার গাড়ি বহর নিয়ে প্রথম উঠবেন এই ফ্লাইওভারে উড়াল পথে। এরপর দিন 3 সেপ্টেম্বর থেকে খুলে দেয়া হবে সব ধরনের যানবাহন চলাচলের জন্য। ঢাকার যানজট কমাতে সড়কটি গতি আনবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখানে গাড়ির গতিসীমা সর্বোচ্চ 80 কিলোমিটার, অর্থাৎ 80 কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চলতে পারবে। তবে কোনো গাড়ি এই ফ্লাইওভারের উপর বা উড়াল সড়কের উপর থামার সুযোগ পাবে না। সড়কের ফার্মগেট থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত পরের অংশ খুলবে আগামী বছর। সব মিলিয়ে 20 কিলোমিটার একটি উড়াল পথ ঢাকার উপর দিয়ে উড়ে যাবে। মানে ঢাকার এ মাথা থেকে ও মাথা যেতে আধ ঘন্টারও কম সময় লাগবে। এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়ে 3 হুইলার, মোটরবাইক, বাইসাইকেল, পথচারী চলাচল করতে পারবে না। যদিও এটি খুলে দেওয়ার কথা ছিল 2018 সালে, কিন্তু নির্মাণ মাঝখানে বন্ধ, অর্থ সংকট, ভুল পরিকল্পনা, জটিলতা বাধে। প্রায় 9 বছর শেষে অবশেষে অর্ধেক শেষ হয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে এরকম অন্তত 3টি এক্সপ্রেসওয়ে শেষ হওয়ার কথা। রাজধানীর 31টি স্থান থেকে এই উড়াল পথে ওঠানামা করা যাবে। প্রকল্পটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিক দেশের বৃহত্তম পিপিপি প্রকল্প। হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাউলা থেকে শুরু হয়ে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, মালিবাগ, খিলগাঁও, কমলাপুর হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত গিয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের মূল দৈর্ঘ্য প্রায় 20 কিলোমিটার, তবে র্যাম্প সহ এর দৈর্ঘ্য 46 কিলোমিটার। প্রকল্পটি ঢাকা শহরের উত্তর দক্ষিণ করিডোরের সড়কপথের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও প্রকল্পটি ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হলে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজতর হবে। এতে করে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে সরকার।
বর্তমানে এই 20 কিলোমিটার উড়াল সড়কের অগ্রগতি 65%। তবে এই ফার্মগেট অংশ পর্যন্ত প্রায় 99%ই কাজ শেষ, আর যে কারণে খুলে দেওয়া হচ্ছে। বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশ পর্যন্ত 11 কিলোমিটার এবং এর র্যাম্পের দৈর্ঘ্য আরও 11 কিলোমিটার। র্যাম্প সহ এই বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এই উড়াল সড়কটির দৈর্ঘ্য 22.5 কিলোমিটার। এই অংশে ওঠানামার জন্য 15টি র্যাম্প রয়েছে। এয়ারপোর্টে রয়েছে 2টি, কুড়িলে 3টি, বনানীতে 4টি, মহাখালীতে 3টি, বিজয় সরণিতে 2টি এবং ফার্মগেটে রয়েছে 1টি। এর মধ্যে 13টি র্যাম্প এখন যানবাহন চলাচলের জন্য। तो भी आपने ये वीडियो देखी ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का, और फिर साउथ एशिया का सबसे बड़ा, ये भी मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है यार, सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है वो बांग्लादेश के पास अब होगा। जिस तरह से बांग्लादेश के पास मातरबारी डीप सी पोर्ट है, यानी एक ऐसी पोर्ट बांग्लादेश के पास जो साउथ एशिया में इससे पहले किसी और देश के पास नहीं है, वो अब बांग्लादेश के पास है। अच्छा, इसको जो बैंकॉक है ना उसकी तरफ पे बनाया जा रहा है, जिस तरह से बैंकॉक को बनाया गया था उसका, फिर उसमें जिस तरह से सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह अब इसको बनाया जा रहा है, और बड़ा खूबसूरत है। आप वीडियो में भी आपने देखा, और फिर इसकी आपने देखा कि स्पीड के बारे में बताया, फिर एलिवेटेड है, और फिर इसके ऊपर जनाब आप सिर्फ 12 मिनट्स के अंदर ये फासला तय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि ढाका मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आबादी है, तो ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती थी। जो लोग हैं वो टाइमली ऑफिस पे नहीं, जॉब के लिए नहीं पहुँच पाते थे, फिर इसीलिए हुकूमत ने एक इसके ऊपर स्टैंड लिया और काम शुरू किया। तो अब ये जनाब जिस तरह से लाहौर का एक कोना और इसी तरह दूसरे कोने को मिलाता है, इसी तरह ढाका के एक कोने से दूसरे कोने तक ये जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है वो वहाँ पे उसको लेकर जाएगी। तो बड़ी ये मैं कहता हूँ कि बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। एक के बाद एक बांग्लादेश बड़े से बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह कर रहा है, उसका इनागुरेशन कर रहा है। तो जी बड़ी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये वीडियो के बारे में भी आपने फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।